महिमा परम प्रभु शिरोबिंदु दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम। उपस्थित समस्त सम्मान बापा भाई मान सम्मान सहित प्रणाम जनाऊँ। समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन कर श्रद्धा एवं अनेक शुभकामना भल पाइबार सहित परसी को मोर शुभकामना जनाइबा सह माँ चरण कमल पुण्य दिव्य आत्मार ज्योतिर्मय भविष्य कामना कर माने धारावाहिक भाव किसी आलोचन परम प्रभु शिरोबिंदुंकर सीजन गीतार विषय वस्तु को पाठ कर प्रथम विषय वस्तु आवर डिमांड एंड नीड फ्रॉम गीतार ये आलोचना शेष भाग में पहुंची पाए। आज आम जहाँ पाठ करवा किपरि विभिन्न प्रकार समन्वय कथा भारतीय संस्कृति कहुई एवं गीता गोटे स्वतंत्र समन्वयर पर्यायभुक्त गोटे स्वतंत्र समन्वय प्रतिष्ठा कर भूमिका निर्वाह कर प्रभु गीतार परवर्ती समन्वय जहाँ भविष्य समन्वय जहाँ पूर्ण जगह घटव से संपर्क में प्रभु शेष भाग में सूचना प्रदान कर पूर्ण जगर से भविष्य समन्वय भगवद गीता किपरि गोटे भित्ति स्वरूप कार्य कर विषय प्रभु सूचना प्रदान कर भविष्य समन्वय संपर्क में सूचना दौरान आम यह बुझीपर आम सौभाग्य जे आम प्रभु द्वारा इंटरप्रेट होता भगवद गीतार जो स्वतंत्र भाष्य ए सीजन गीता को आम पाठ कर निश्चित भाव में जहाँ माँ वाणी रही प्राथमिक अवस्था आम कथा आलोचना करते भगवद गीता भविष्य तार जो भूमिका निर्वाह कर जो अवस्था अच्छी से अवस्था रही तार भूमिका निर्वाह करने संभव नुहे। तो प्रभु भगवद गीतार ये भाष्य लिखिकी भविष्य समन्वय संपर्क में पुस्तक कही जहाँ कहले आम से कथाटी प्रभुंर लेखाटी पढ़ला भितर कथाटी उपलब्धि कर अनुभव कर प्रथम भारतीय संस्कृति जो सिंथेसिस कथा कहुच्छे वैदिक जुगर समन्वय तापर उपनिषद जुगर समन्वय तापर भगवद गीता से समन्वय को किपरि भिन्न समन्वय को किपरि प्रतिष्ठा कर प्रभु तंत्र जगह समन्वय कथा प्रकाश कर सीधा सड़क भविष्य समन्वय किपरि हो से कथाटी कही 9 नंबर पेज आमर आलोचना 9 नंबर पेज रही प्रभु लिखले देयर हैव बीन अदर सिंथेसिस इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंडियन थॉट we start with the Vedic synthesis of the psychological being of man in its highest flights and widest rangings of divine knowledge, power, joy, life and glory with the cosmic existence of the gods, persuade behind the symbols of the material universe into those superior planes which are hidden from the physical sense and the material mentality. The crown of this synthesis was the experience of the Vedic rishis, something divine, transcendent and blissful in those unity, the increasing soul of man and the eternal divine fullness of the cosmic Godhead meet perfectly and fulfill themselves. प्रभु कहले जे भारतीय चिंताधारा जो दीर्घ इतिहास रही अनेक समन्वय विषय आलोचना रही अनेक समन्वय एठार रूप ग्रहण कर जो प्रथम समन्वय ता हूँ वैदिक जुगर समन्वय। ये वैदिक जुगर कौन समन्वय घटी मनीष हूँ मन बुद्धिमय सत्ता मैन इज अ मेंटल बीइंग ये मन स्तर
ଆମେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଋଷି ମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ମନ ସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଘଟେଇଥିଲେ। ମନ ସ୍ତରରୁ ଚେତନାର ଆରୋହଣ ଫଳରେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ ଓ ଗୌରବର ମହିମା ନେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱମୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ମାନସିକ ଜୀବନଟିକୁ ସେଟା ସମନ୍ୱୟ କରାଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରତୀକ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିଛି। ଆମେ ଆମ ଆଖିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଆଖି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଗୁଡିକ, ସେଇ ବସ୍ତୁ ବା ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ। ସେଇ ସ୍ଥୂଳର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ରୂପର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷ ମନ ସେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ଵ ରହିଛି ତାହା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ବି ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ନେଇକି ଆମ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ରହିବ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଋଷିମାନେ କଣ କରିପାରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମନ ସତ୍ତାକୁ, ମନ ବୁଦ୍ଧିମୟ ସତ୍ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ ଓ ଗୌରବର ମହିମା ନେଇକି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ଯୋଉ ବିଶାଳତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱମୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତର ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ଵର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ସହିତ, ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ସହିତ ସେମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟି ଜଗତରେ କେମିତି ଅଛି ସେ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଦି ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସନନେସ୍। ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଓଡିଆରେ ଯଦି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟତ୍ୱ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ସୂର୍ଯ୍ୟତ୍ୱ ହଉଛି ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ। ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଅବଶ୍ୟ ମନର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହିଁ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର ତାକୁ ସେତିକି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସେ ଋଷିମାନେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କଥା ଗୁଡିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବା, ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ତାର ପାଇବା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥୂଳ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ବିକାଶ ଘଟି ନଥିଲା। ଆଜି ଯେମିତି ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ରହିଛି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଗୁଡିକ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା। ତଥାପି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଋଷିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇକେଲ, କେତେ ବର୍ଷରେ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଗବେଷଣା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଗଲେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥୂଳ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ହାସଲ କରିପାରୁଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବା ଏଇ ଯୋଉ ମନର ପରିସୀମାର ବାହାରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସେ ମନକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ବୈଦିକ ଋଷିମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଜଳ ଜଗତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ସବୁର ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ପାଇପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥୂଳ ମନ ପାଖରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହୁଥିଲା ବା ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ପଶ୍ଚାତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଟି, ତାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିଲା, ସେ ସମନ୍ୱୟର ଚରମ ସୀମାରେ ଋଷିମାନେ ରୁଚ ଚିତ୍ର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଭବକୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଆନନ୍ଦମୟ ପରମର ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଭୂତିରେ କଣ ହେଇଥିଲା
मनुष्यर जो इवोल्यूशनरी सोल क्रमवर्धमान आत्मा से दिव्य देवता मान सहित विश्व देवता मान सहित संपर्क स्थापन कर द्वारा कौन होता विश्व देवता मान जो मनोमय सत्ता मान सहित संपर्क आसुले पूर्णता भी एक स्वतंत्र स्तर को जाऊला मन बुद्धिमय मानव सत्ता जिते विश्व देवता मान सहित संपर्क स्थापन करुला ये मन बुद्धिमय मानव सत्ता भी गोटे स्वतंत्र स्तर पूर्णता को हासिल कर मन बुद्धिमय मानव सत्ता गुड़िक जो विश्व देवता मान सहित संपर्कित होते से परस्पर को पूर्ण करुले वैदिक ऋषि मानकर यह भूमिका वैदिक ऋषि मानकर भूमिकार जो मैंने सिद्ध होते भूमिका जो स्वतंत्र चेतनार स्तर को उचित होते आहरी एक समन्वय आरंभ है उपनिषद युगर समन्वय प्रभु तक कहले द उपनिषद टेक ऑफ दिस क्राउनिंग experience of the earlier seers and make it their starting point for the high profound synthesis of spiritual knowledge. They draw together into a great harmony all that had been seen and experienced by the inspired and liberated knowers of the eternal thought, eternal throughout a great and fruitful period of spiritual seeking. प्रभु कहले उपनिषद जो पूर्वतन ऋषि मान वैदिक जुगर पूर्वतन ऋषि मानकर उपनिषद कौन कला जो से ऋषि मानकर चरम अनुभूति को ग्रहण कला प्रथम से आरंभ करिकी गोटे आध्यात्मिक ज्ञानर ओ आध्यात्मिक ज्ञानर महान और गभीर समन्वय दिगरे गोटे अग्र पदक्षेप नेला उपनिषद तांकर अनुभव को गोटे ज्ञान स्तर को से नहीं आसे जिते वैदिक जुगर ऋषि माने विभिन्न प्रकार सूक्ष्म अनुभव सब प्राप्त करथिले से सूक्ष्म अनुभव द्वारा गोटे प्रकार इन्स्पायर हेले उपनिषद ऋषि माने एवं से इंस्पिरेशन जहाँ से उत्साह प्राप्त कले वैदिक जुगर ऋषि मानकर समस्त प्रकार साधनार फल ज्ञान रूप को आनिकी आध्यात्मिक ज्ञान स्तर को आनिकी अनेक प्रकार गवेषणा से करने आरंभ करते अनेक प्रकार ऊर्ध्वतम अनुभव अनुभूति एवं महान महान अन्वेषण उपनिषद ऋषि मान द्वारा संभव हो पार विभिन्न स्तर में वैदिक जुगरे ऋषि मानकर विभिन्न प्रकार एक्सपीरियंस रही आम वेदर से जो ऋषा गुड़िक देखा से भिन्न भिन्न ऋषि मैंने भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त कर उपनिषद ऋषि मैंने कौन कले से अनुभव को गोटे सिंथेसाइज कले भिन्न भिन्न प्रकार अनुभव को गोटे प्रकार समन्वय अवस्था को आने से आम देखा जदि वेद और उपनिषद को तुलना करा जाए वेदर से मंत्र गुड़ी को सहज बुझा आम संभव नुह कि तुलनात्मक भाव में वैदिक जुगर से उच्चतम अनुभव गुड़ी को गोटे ज्ञान स्तर को आनी समस्त प्रकार अनुभव अनुभूति को जेहेतु उपनिषद गोटे समन्वय रूप प्रदान करें ऋषि मैंने निजर भूमिका निर्वाह कले आम कंपेरेटिवली उपनिषद को सहज बुझीपर वेदांत को सहज बुझीपर भगवद गीता कौन कले प्रभु कहते The Gita starts from this Vedantic synthesis and upon the basis of its essential ideas builds all together harmony of the three great means and power, love, knowledge and work, through which the soul of man can directly approach and cast itself into the eternal. माने गीता आउट के प्रैक्टिकल स्तर को एक कथाटी को नहीं आसले वैदांतिक जुगर बा उपनिषद जुगर जो समन्वय होता विभिन्न प्रकार ज्ञान मानकर विभिन्न प्रकार अनुभव मानकर जो समन्वय
ସେଇଠାରୁ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସହିତ ତାହାରି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମ ପରି ତିନୋଟି ମହାନ ସାଧନାକୁ ସେ ସମନ୍ୱୟ କରେ। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିବା, ଆମ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଆଗକୁ ନବା, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ, ଉପନିଷଦ ଯୁଗର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆହୁରି ଏକ ବୈବାହିକ ସ୍ତରକୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ମହାନ ସାଧନାର ଉପାୟକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ସେଇ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସମନ୍ୱୟ କଲେ, ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମକୁ, ଆମେ ସହଜରେ ସେ କଥା ଗୁଡିକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବା। ଭଗବତ ଗୀତା ଏହାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଗୀତା ଏଇ ବୈଦାନ୍ତିକ ସମନ୍ୱୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତା ଉପରେ ଛିଡା କରାଇଲା ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମ, ଏ ତିନୋଟି ମହାନ ସାଧନାର ଗୋଟେ ନୂତନ ସମନ୍ୱୟ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି କଣ ହବ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ମାନବ ଆତ୍ମା ସିଧାସଳଖ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜତର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ସମନ୍ୱୟ କଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ, ଯାହାର ଭିତ୍ତି ହଉଛି ଉପନିଷଦ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଉପନିଷଦର ସେ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଋଷି ମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ସରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ତାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ସେଥିରେ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଲେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଏକ ସମନ୍ୱୟ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ତା ହଉଛି ତନ୍ତ୍ରର ସମନ୍ୱୟ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ there is yet another, the tantric, which through less subtle and spiritual profound is even more bold and forceful than the synthesis of the Gita. For it seizes even upon the obstacles to the spiritual life and compels them to become the means for a richer spiritual conquest and enables us to embrace the whole of life in our divine scope as the Leela. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରେ ଆହୁରି ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ହଉଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସମନ୍ୱୟ। ଏଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସମନ୍ୱୟ କଣ, ଯେ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସମନ୍ୱୟ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭୀରତାରେ ଗୀତାର ସମନ୍ୱୟ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଏହା କମ୍ ନୁହଁ। ତା ଛଡା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସମନ୍ୱୟର ଆହୁରି ଏକ ମହାନତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଯଦି ଆମେ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା, ଏହା ଗୀତା ଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗରେ କଣ କରାଯାଇଛି, ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ, ସେଇ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜୟ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମନ୍ୱୟର ଜ୍ଞାନ ସେଠି ରହିଛି ଯେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଗୋଟେ ସହାୟକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ସହାୟକ ଉପାୟ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଏଠି ଭୁଲ ଭାଲ କୋଉଠି ଆସିବ, ବାଧା ବିଘ୍ନ କୋଉଠି ଆସିବ? ଏଠି ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ମା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ when difficulties beside you, think that my grace is with you. ଯେତେବେଳେ ବାଧାବିଘ୍ନ ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖୁଛି, ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୋର କୃପା ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମାଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ,
be grateful towards all your ordeals because they are the shortest way towards victory. तुम्हारा समस्त प्रकार अग्नि परीक्षा बाधा विघ्न प्रति तुम्हें मैंने कृतज्ञ हो, ग्रेटफुल हो, कारण यह हूँ तुमर अग्रगति तुमर लक्ष्य प्राप्त करने तुमर आध्यात्मिक विजय हूँ गोटे कौन सर्टकट वे बाधा विघ्न आसने आम सहज अग्रगति कर तंत्र से स्वतंत्र समन्वय को ग्रहण कर समस्त जीवन सबू कथा को भगवान को लीला बोली ग्रहण कर गोटे डिफिकल्ट जिनस बोली किसी ना बोली तंत्र कहे यहाँ हूँ स्वतंत्रता तंत्र तापरे आम देखा जे आम आम आध्यात्मिक जीवन में कौन कौन सब बाधा सब आसे तंत्र से बाधा गुड़ी को किपर स्वतंत्र उपाय माध्यम अतिक्रम भी कर प्रयास कर जगह प्रभु कहले and in the same direction it is more immediately rich and fruitful for it bring forward into the foreground along with the divine knowledge, divine works and enriched devotion of divine love, the secret also of the Hatha Yoga and Raja Yoga, the use of body and the mental ascesis for the opening of the divine life on all its planes, to which the Gita gives only the passing and perfunctory attention. भगवद गीता सर्वाधिक गुरुत्व भक्ति ज्ञान और कर्म पर देखा तंत्र आउरी प्रैक्टिकल स्तर को आसिकी तंत्र कौन करछि अवश्य तंत्र कौन सी दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान को रिजेक्ट करबा दिव्य ज्ञान व्यक्ति रखे कौन सी पंथा को ताहा निर्धारित करना ताको यूज करछन बा तंत्र बेस भी समान से आध्यात्मिक ज्ञान ठीक आध्यात्मिक ज्ञान को आहुरी समृद्ध आहुरी फलप्रस्तुत करने तंत्र कौन करछि दिव्य ज्ञान दिव्य कर्म और भक्ति को दिव्य प्रेम संगे जोग करने सह सेठी हठ योग एवं राजयोगर रहस्य सबको उद्घाटन करा हठ योग राजयोग माध्यम किपरि आमे माने दिव्य जीवन स्तर को जाई परिबा से व्यवस्था तंत्र करा आमे आमे बुझिबा जे एक्चुअली हठ योगर उपाय गुड़िक कौन एवं तार भूमिका किपरि हमर अग्रगति रही राजयोगर उपाय गुड़िक कौन एवं तार भूमिका हमर अग्रगति किपरि रही आमे से कथा बुझी पारले बुझी परिबा जे तंत्र किपरि एक स्वतंत्र भूमिका निर्वाह करते आमर चेतना की जो शरीर मध्य संपूर्ण भाव में निमग्न होगी रहे शरीर भितर सहजरे से चेतना को अग्रगतिर स्तर को आनी हम ना कारण आम जानते शरीर हूँ जड़ एवं समग्र प्रकार तामसिक निष्क्रियता आरी भितर ही थाए जड़ अवस्था थाए आलस्य परिवर्तन विमुखता ये शरीर भितर ही थाए तो ताकू आप सहजरे कहले बा गोटे छोटिया छोट पिला भाया बुझेले हम ना जहाँ कहुए जो सरल भाषा विनम्र भाषा व्यवहार करी आप शरीर को बुझे पारे कारण से तो पूरा तामसिक अवस्था रही उदाहरण स्वरूप जड़े व्यक्ति गभीर निद्रा शोची सपोज कुंभकर्ण गभीर निद्रा शोची आपन जाग्रत करने भक्ति संगीत गाइबे धीरे धीरे डाकिबे हले हले संभव कि तो संपूर्ण जड़ अवस्था अच्छी तो ताकू आघात दरकार आघात देकी ही उठे हम तो शरीर भितर जो चेतना को जागृत करने प्रैक्टिकली हट जोगर गोटे आवश्यकता रही जिते कर्म विवर्तन आरंभ होता प्रथम मनीष स्तर को चेतनाटी आसी मानव स्तर को पूर्वर जो जड़र प्रभाव एवं प्राणर प्रभाव मनीष चेतनाटी ही संपूर्ण भाव से शारीरिक अवस्था ही पूरा तामसिक अवस्था पूरा आलस्य परिवर्तन विमुख अवस्था तो से जगार आम दिव्य ज्ञान कथा कथा कौन हो चेतना तो शारीरिक स्तर अच्छी जमी आपन को प्रबल निद लगुच आपण भर अग्रगति कर इच्छा ना जिज्ञासा ना से समय जड़े दिव्य ज्ञान गोटे प्रचार से आप सामने रोचे आप किसी ग्रहण करेंगे संभव नुह तो से जगार
से सूक्ष्म ज्ञान अपेक्षा शरीर से पिंड मध्य चेतना को उद्धार करने बेसी आवश्यक से कार्य हठ जोग निजर भूमिका निर्वाह कर आवश्यक अग्रगति पूरा आवश्यक से समय थी जमी स्वामी विवेकानंद उदाहरण नि जापे जो पाश्चात्य देश में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को से प्रचार करते तो भारतीय माने उत्साहित होते जे स्वामीजी भारत को फेरिले आम वेद उपनिषद सब कथा गुड़ शुणा एवं सी आसला जो अनुरोध टी करागला सी गोटे बढ़िया प्रैक्टिकल कथा कहते प्ले फुटबॉल फास्ट जे जनकर जड़े तामसिक अवस्था अच्छी जड़े आलस्य परिवर्तन विमुख अवस्था अच्छी निज परिवर्तन करने चाहूनी आत्पुराटी जाग्रत होनी सी दिव्य ज्ञान कौन रस कर तो प्रथम आम तो आलस्यु बाहर ना तामसिक अवस्था बाहर ना से तंत्र हट जोग गुरुत्व दूसरा आम चेतना केवल शरीर मध्य आबद्ध हो आम मानकर मन गोटे प्रकार बैरियर मन गोटे प्रकार बाधा सृष्टि करे आमे जमी प्रभु कहले महापुस्तक आम मैंने अनेक मानसिक धारणा अभिमत अभिरुचि मध्य पूरा निजक मजेक रखी था ता भर आम केमी बाहर आम किपरि चिंता करवा शिखा आम किपरि मन जहाँकि बातचक्र भाया आमको बाटबणा कर कंट्रोल स्तर को आने तो से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कथा तंत्र बुझी से राजयोगर रहस्य को उद्घाटित करागला राजयोग आम जीवन में किपरि अभ्यास कर से सबूर सूत्र तंत्र रहा आम सीधा सड़क प्रैक्टिकल लाइफ रे आम प्रैक्टिस जो करवा कौन प्रैक्टिस करवा आम से अवस्था माने ध्यानस्थ अवस्था रही आम शोई पड़ा तो प्रैक्टिस कला बेलू हट जोगर आवश्यकता नहीं राजयोगर आवश्यकता नहीं कारण जो माँ कहते आम केवल अंतरात्मा रे भगवान को अनुभव करवानी इवन द बॉडी शाल रिमेम्बर गॉड आम शरीर भगवान को अनुभव कर शरीर तार भूमिका निर्वाह कर मन तार भूमिका निर्वाह कर प्राण तार भूमिका निर्वाह कर अंतरात्मा केवल भूमिका निर्वाह कले तो भगवान से प्रेमटी जगत में केवल प्रकाश पाई भगवान सौंदर्य ज्ञान और शक्ति अप्रकाश्य अवस्था रहे आम जो प्रैक्टिस करवा सबू सत्ता मान सत्ता मान उत्थान जेहेतु आवश्यक रही तो भगवत गीतार समन्वय पर तंत्र हठ योग और राजयोगर गुरुत्व को बुझाई चेष्टा कले आम एक कथा बुझीपर प्रभु के चमत्कार भाव में सबू प्रकार अवस्थार सत्य संपर्क में आमको अवगत कर शरीर मन जेहेतु साधना करने आवश्यक ताप उपयोगी हूँ हठ जोग और राजयोग से तंत्र तापर गुरुत्व देले तापर प्रभु कहले तापरे आम तेज पढ़िले मुझे पढ़ी दूसरी प्रभु कहते and in the some direction it is more immediately rich and fruitful for being forward into the foreground along with the divine knowledge, divine work, and an enriched devotion of the divine love. The secrets also of the Hatha Yoga and Raja Yoga, the use of body and of the mental ascesis for the opening up of the divine life on all the places, to which the Gita gives only a passing and preliminary attention. गीता ये शारीरिक जोग एवं मनर जोग संपर्क में विशेष गुरुत्व न दे हल्का भाव कथा को कही सत्वे तंत्र किंतु ये हठ जोग एवं राजयोग उपर बहुत गुरुत्व प्रदान कर गीतार ये विषय गुड़ी अत्यंत मामूली और यथायथ भाव में विचार कर समय यथातथा भाव में तंत्र किंतु बहुत गुरुत्व देते हठ योग और राजयोग तापरे
प्रभु कहले moreover it grabs at that idea of the divine perfectibility of man possessed by the yogic rishis but thrown into the background by the intermediate ages, which is destined to fill so large a plane in any future synthesis of human thought, experience and aspiration. मनुष्य जो दिव्य पूर्णतार आदर्श को धरिकी जाऊँची जहाँ को वैदिक ऋषि माने अवश्य ग्रहण करथिले किंतु परवर्ती समय रे ताहा पर आवश्यक गुरुत्व दिया जाय नथिला ताहा को तंत्र भल भाव रे धरिकी चली किंतु तंत्रर समन्वय पर मध्य गोटे दिव्य पूर्णतार आदर्श तथापि भी विश्व रे प्रतिष्ठित हो पारि नाही एकता प्रभु कहले किंतु भविष्यतर मानवर विचार अनुभूति अभिष्टा पाई जो समन्वय आसीबो सेतिरे ए दिव्य पूर्णतार आदर्श एक विशेष स्थान पाइबा अवधारित तामाने समस्त प्रकार सिंथेसिस आम पढ़िले देखिले किंतु भविष्यतर सिंथेसिस हम गोटे दिव्य पूर्णतार समन्वय the future synthesis of human thought, experience and aspiration. जो जगह रे मनुष्यर अनुभव अनुभूति तार विचार तार अभिप्सार गोटे समन्वय घटे एवं जितेबाला मनुष्यर विचार अनुभूति और अभिप्सार गोटे समन्वय घटो दिव्य पूर्णतार आदर्श को आम अनुभव करवा भविष्यतर कथाटी प्रभु कहले एमिति एक समय आसीबो प्रभु कहले वी of the coming days stand at the head of new age of development which must lead to such a new and larger synthesis. We are not called upon to be orthodox Vedantis of any of the three schools of Tantric or to the other to one of the thesis religions of the past or to enrich ourselves within the four corners of the teaching of the Gita. That would be to limit ourselves and to attempt to create our spiritual life out of the being knowledge and nature of others, of men of the past, instead of building it out of our own being and potentialities. प्रभु कहले जे आगामी काल रे आमे माने आज विकासर एपरि एक नूतन जुगर पूर्वभाग रे छिड़ा होइछु जार परिणत हम आउ एक बृहत्तर समन्वय आउ एक नुआ नूतन नव समन्वय आमर यार काम नुह जे आम माने जो वेदांतर जो प्रधान तीनोटी संप्रदाय कौन सी गोटे को धरिक निष्ठा भाव वेदांतवादी कि तांत्रिक मत अवलंबी आम बा अतीतर कौन सी ईश्वरवादी धर्मर अनुगामी आम मैंने बा गीतार जो जहाँ जहाँ सब सूत्र सब रही आम अनुकरण करके आम गीता साधक होता आम पर्पस नुह जदि आम एमती पर्पस नहीं कि साधना कलु ताले आम मैंने निजे ही निजर प्रोग्रेस को लिमिट कर आम निजे ही निजक सीमित अवस्था को नहीं आसवा कारण भविष्य तो यही सब उपाय को अवलंबन कर अनेक साधक मान सृष्टि दीज आर द थिंग ऑफ पास्ट ताहा अतीतर विषय वस्तु आम निजक प्रश्न करवा आम कौन से अतीतर कि आमे कौन से सीमार सीमित होती सत्यर अनुसंधान करवा जो सीमित चेतना अधिकारी पूर्व समस्त होती आमे कौन से स्तर पर्यटन केवल ही जावा ना आम निजक से अवस्था सीमित करवा केवल भी आम लक्ष्य नुह आमको परवर्ती अवस्था को जावाक पड़े अवश्य जो पूर्वर ज्ञान रही पूर्वर जो आध्यात्मिक सिद्धि सब रही आम मान को भित्ति रूपे सहायता प्रदान करें किंतु दीज आर नॉट आवर एम एंड ऑब्जेक्टिव आमे वेद पढ़ा वेदर इंटरप्रिटेशन पढ़ा से अनेक सूक्ष्म तत्व को ग्रहण कर किंतु जड़े वैदिक ऋषिर स्तर को जावा आम लक्ष्य नुह आम वेदांतर सत्य अनेक सत्य को ग्रहण कर अनेक सिद्धिर
अनुभव आम अनुभूति प्राप्त कर ज्ञान को व्यवहार कर किंतु जो ऋषि मैंने उपनिषद से ज्ञान को व्यवहार कर चेतनार जो स्तर को जाते स्तर को जीवा आम लक्ष्य केवे भी नुह आम भगवद गीतार भक्ति ज्ञान और कर्मर समन्वय को भी ग्रहण करवा किंतु पूर्वर जो साधक माने भक्ति कर्म और ज्ञान साधक हिसाब से भक्ति ज्ञान और कर्म को व्यवहार कर चेतनार जो स्तर से उपनीत होते से स्तर को उठीजा केवे भी आम मान लक्ष्य नुहे तंत्र सूत्र गुड़िक भी आम व्यवहार करें सन्देह किसी ना कि भूल भाल ना किंतु गोटे तंत्र साधक हवा आम लक्ष्य नुहे हठ योग और राजयोग को व्यवहार करी आम गोटे हठ योगी गोटे राजयोगी आम लक्ष्य नुहे अवश्य से सबू सूत्र गुड़िक आम मैंने व्यवहार करें किंतु आमर लक्ष्य हूँ दिव्यपूर्ण यहाँ आम लक्ष्य आम भित्ति रूप ग्रहण करें एमपी पंडित गोटे लेखार कथा भी चमत्कार कहते पूर्वर जहाँ सब शास्त्र रही पूर्वर जहाँ सब सूत्र गुड़िक आध्यात्मिक सूत्र गुड़िक रही आम व्यवहार करवा किंतु से आध्यात्मिक सूत्र व्यवहारकारी मानकर जो लक्ष्य था आम लक्ष्य केवे भी नुह आश्रम हठ योग प्राक्ट करा जाए अवश्य प्योर हठ योगी प्राक्ट ना भी योगासन प्राक्ट करा जाए आम माइंड को कंट्रोल करने संपर्क में पीस को डिसेंड करने संपर्क में थॉट को कंट्रोल करवा माइंड को साइलेंस करवा से सब संपर्क में माँ कहते राजयोग जेन कहुए ताकू भी आम प्राक्ट करुचु तंत्र अनेक तथ्य सब रही सब टेक्निक्स रही मेडिटेशन एक्जाक्टली आम भी देखा आम से सब जिन माँ लेखार भी रही आम प्राक्ट भी करुँ नुआ आम कौन प्राक्ट कर नूतनत्व योगर कौन से कहते नूतनत्व हूँ ये योगर लक्ष्य ता हूँ दिव्यपूर्णता ना वैदिक जुगे लक्ष्य थिला ना उपनिषद जुगे ना भगवद गीतार मध्य से कथा आलोचना भाव रही ना तंत्र तंत्र विभिन्न ब्रांच कथा आम हठ योग कि राजयोग कथा को नेले भी से भी यही लक्ष्य ना प्राक्टिस दे आर वेरी सिंसियर टेक्निक दे आर वेरी सिंसियर आम से टेक्निक से प्राक्टिस ग्रहण कर बट लक्ष्य को आमको ग्रहण करार नहीं लक्ष्य हूँ आम मान दिव्यपूर्ण यह हूँ नुआ जोगर स्वतंत्रता से प्रभु गोटे चमत्कार शब्द कहते आम मैंने किए वास्तव में आम मैंने किए आम मैंने वी डू नॉट बिलोंग टू द पास्ट डॉन्स बट टू द नून्स ऑफ द फ्यूचर आम मैंने अतीतर उषार नुह आम मैंने हूँ भविष्यतर मध्याह्न आम जदि लक्ष्य को ग्रहण करने पुरातन जुगर आम मैंने अतीतर उषार हो रही किंतु आम वास्तव अतीतर उषार नुह आम हूँ भविष्यतर मध्याह्न कारण आम मान लक्ष्य हूँ दिव्यपूर्णता प्रभु कहते mass of new material is flowing into us. We have not only to assimilate the influence of the great theist religions of India and of the world and recovered sense of the meaning of the Buddhism, but to take full account of the potent through limited revelation of modern knowledge and thinking, and beyond that, the remote and deathless past, which seem to be dead, is returning upon us with an effulgence of many luminous secrets long lost to the consciousness of mankind, but now breaking out again from behind the veil. All these points to a new, a very rich, a very vast synthesis, a fresh and widely embracing harmonization of our gains is both an intellectual and a spiritual necessity of the future. But just as the past syntheses have taken those which preceded them for their long starting point, so also must that of the future, to be on firm ground, proceed from what the great bodies of realized spiritual thought and experience in the past have given. Among them, the Gita takes a most important place. प्रभु कहले जे पूरा राशि राशि नूतन उपादान गुड़िक आम मध्य को प्रभावित होती आम मान जे भारत तथा पृथ्वीर केतेक ईश्वरवादी धर्मर प्रभाव सबको और बौद्ध धर्मर नव आविष्कृत मर्म सबको आत्मगत करने खाली से नुहे
आमको आध्यात्मिक ज्ञान और अन्वेषण सीमित अर्थात संभावनापूर्ण आविष्कार सबूर पूर्ण समीक्षण करने यह छड़ा एपरिक संपूर्ण मृत बोली मन होता सुदूर अतीत आज आम एसबू ज्योतिर्मय बहु रहस्यर संभार नहीं आसूची जहाँकि मनुष्यर चेतना दीर्घ दिन धरी लुप्त हो जाता आज से सब पुणी माने आवरण पश्चात निज प्रकाश कर चमत्कार कथा सब प्रभु कहे आम को वास्तव में कौन कौन कर नुआ नुआ जिनस आम प्रवेश कर अनेक माने बहुत पूर्वर जो ईश्वरवादी धर्मर सब प्रभाव सब था बौद्ध धर्मर जो नुआ आविष्कृत मर्म सब रही आमको आत्मघात करने आत्म सत करने पड़े से नुह आत्मगत करने से नुह आमको आध्यात्मिक ज्ञान अन्वेषण करा पड़े आधुनिक ज्ञान को जमती जो आम माँ को पढ़ुचे माँ लेखा गुड़िक प्रभु लेखा गुड़िक धर्मर बहुत ऊर्धे समस्त प्रकार धर्म को समन्वय कर आधुनिक ज्ञान जपरी विज्ञान अनेक प्रकार दर्शन को निजर आलोचना नहीं एक पूर्णांग रूप प्रदान कर अनेक जिन अतीत रही आम वेद उपनिषद भगवद गीता महाभारत रामायण यार परिसरभुक्त कर माँ केते लोकायत होता महान शास्त्र गुड़ी रिभिल कर नुआ रूप से गुड़िक आम गोटे आसूची आम गोटे प्रकार उपहार रूप भगवान तरफ आस दीर्घ दिन धरी मनुष्य चेतना भितर जहाँ लुप्त हो रही आज सी पुनर्बार तार आवरण पश्चात आम पाक आस ये सब कौन इंगित कर नूतन समृद्ध और अत्यंत महान महान समन्वय कथा आमको ताकू ग्रहण करा पड़े गोटे उदार हृदय सबू किसी को आमको ग्रहण करा पड़े कारण भविष्य जो आध्यात्मिकता आसूची से सबूरे यार प्रयोजन रही जमती वैदिक समन्वय उपनिषद समन्वय आरंभ होता उपनिषद समन्वय वैदिक समन्वय आरंभ होता जमती गीतार समन्वय उपनिषद समन्वय आरंभ होता जमती तांत्रिक समन्वय गीतार समन्वय आरंभ होता आमे माने ए सबूर समन्वय को भित्ति करके नुआ दिव्य पूर्णतार समन्वय स्तर को जीवार अच्छी प्रभु एक कहते ठीक जपरी अतीतर समन्वय गुड़िक से परवर्ती समन्वय ठारू ही आरंभ होती भविष्य समन्वय गुड़िक दृढ़ और सुप्रतिष्ठित होगापी अतीतर महान आध्यात्मिक चिंता और अनुभूति सबूर भित्तिभूमि उपर ही आरंभ हम अतीतर ये महान संपद सबू गीतार संपद सबुरे गीतार स्थान हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण जहाँ उपरे आम से दिव्य पूर्णतार भित्ति स्थापन हम से पूर्ण जोगर भित्ति स्थापन करने भगवद गीतार गोटे प्रमुख भूमिका रही बोली ही प्रभु तापर इंटरप्रिटेशन आज समय किंतु आलोचना जेहेतु शेष भाग रही आम आ कि धाड़ी गोटे 2 मिनिट लगे आम पढ़ीदे जो पाराग्राफ रे प्रभु कनक्लूड कर दे विषय वस्तुटी को प्रभु कहले आमर ऑब्जेक्ट कौन भगवद गीता को पढ़ा आवर ऑब्जेक्ट देन इन स्टडीइंग द गीता विल नॉट बी अ scholastic or academical scrutiny of its thought, nor to place its philosophy into the history of metaphysical speculation, nor shall we deal with the manner of the analytical dilatation. We approach it for help and light, and our aim must be to distinguish its essential and living message that in it on which humanity has to seize for its perfection and its highest spiritual welfare. प्रभु कहले कि भगवद गीता को अध्ययन करिवार हमर लक्ष्य यह नुहे जे आमे कोन करबा यार चिंताधारार गोटे युक्ति बुद्धिगत पांडित्यपूर्ण पर्यालोचना करिबा किंबा गोटे आध्यात्मिक गवेषणा इतिहास रे यार दर्शन को आमे एस्टाब्लिश करिबा बा यहाँ गोटे न्यायिक गोटे तर्क सिद्ध विश्लेषण यार करवा कदापि आम लक्ष्य नुहे भगवद गीता को पढ़ी थीसिस लिखिकी गोटे पांडित्यपूर्ण पर्यालोचना करवा
गोटे गभीर गवेषणा आध्यात्मिक इतिहास को करने भगवत गीता को आम से उद्देश्य अध्ययन करवा किंबा गोटे युक्ति सिद्ध विश्लेषण आम भगवत गीतार करवा एटा आम भगवत गीता पढ़वार लक्ष्य नुहे आम गोटे दृष्टि देखिले गोटे विनम्र हृदय रे आम से महान ग्रंथ जो महान ग्रंथटी बहुत ऊर्ध्वतम आलोक को निज हृदय रे धारण कर रही आम से ग्रंथ पाखे शरणापन्न होचु तांकर आलोक एवं साहाय्य पाई आमर लक्ष्य हम कौन तांकर पाखे शरणापन्न ही गोटे पाखरु गोटे जीवंत संदेश को संधान करवा एवं आमे से महान ग्रंथ पाखे शरणापन्न ही तांकटू विनम्रतार सहित यही कथाटी मागी आनिबा एपरी ज्ञान एपरी आलोक तांकटू आमे आशा करवा जो आलोक जो ज्ञान आमको भविष्य पूर्णता एवं गोटे आध्यात्मिक सर्वोत्तम आध्यात्मिक कल्याण पथरे आगू नहीं जाए सहायक हो भारतीय संस्कृतिर यह हूँ महानता आम मैंने जो गोटे उदाहरण सहित कथा रखुची जड़े आम किसी अपभाई मैंने गोटे गाड़ी ट्राभेल करूँ तो मो पाखे बसी जड़े भाई जड़े अपा कहते गोटे दांत पेन होता से कहले आप गोटे कम करेंगे मोर कथा गुरुत्व देकी आपण वज्रमूली गछ पाखु जीवे एवं पाखे किसी फूल पुष्प इत्यादि पुष्प फल इत्यादि थोड़ी प्रार्थना करेंगे कहे हे देवता आपणकर मध्य भगवान कृपार दांतर रोग को भल कर शक्ति सामर्थ्य रही ज्ञान रही मु आपण को यठार नौची जेपरिक परवर्ती समय आप मत रोग मुक्त होगा सहायता प्रदान करेंगे उपाड़ी ने काटे श्रद्धार सहित दांत घासबार व्यवहार करेंगे धीरे धीरे आप दांत रोग भल यार कौन साइंटिफिक प्रूफ ना कि आमे आमे एक कथा को एते गुरुत्व दबा नहीं जे प्रकृति से हम कि न हो मु उदाहरण ये देली ए भावटी भारतीय संस्कृतिर बहुत गोटे उच्चतम भावटी आम जो गछटू फूलटी भी छिंडौचु आम श्रद्धार सहित से गछ को परमिशन मागिक जो छिंडेवा ताने आम पाखे शरणापन्न ही तार गोटे अमूल्य संपत्ति को आम आणुचे भावटी आध्यात्मिक अग्रगति में बहुत गुरुत्वपूर्ण आम जदि भाव गछ मु लगे मुझे पानी देइछि तो फूल फुटी माने मोर भूमिका रही मोर गोटे क्रेडिट मुझे जमी नहीं सेमि दे पारि आध्यात्मिक अग्रगति भावटी कदापि ग्रहणीय नुहे यह ठीक विनम्रता और सरलतार विपरीत ये औदत्य आध्यात्मिक अग्रगति को सब बाधा दिए माँ कथा को भारी गुरुत्व दी तो भारतीय संस्कृति रिचनेस रही आमे आमे विनम्र हृदय शरणापन्न हो जाऊ सबू किसी पाखे जिते कौन पशु ठार आम किसी खाद्य ग्रहण कर भी शरणापन्न हबार विधि रही गछ पाखे शरणापन्न हबार विधि रही एठी प्रभु जहाँ कहले आम भगवत गीता परी अनेक शास्त्र रही जो शास्त्र आलोक ग्रहण करने समय आम गोटे पंडितर भाव नहीं कि जाऊनु विनम्रतार सहित आम पाखे आलोक को प्रार्थना कर उदाहरण टी बेसी गुरुत्वपूर्ण नुह उदाहरण दबार मोर उद्देश्य था तार पश्चात भावटी केते गुरुत्वपूर्ण प्रभु ये कहते आम पांडित्यपूर्ण पर्यालोचना कि युक्ति सिद्ध हवाई भगवत गीता को अध्ययन करूना बरम भगवत गीतार आलोक से ज्ञान जहाँ भविष्य आमको जार सहायतार भविष्य से पूर्णता हासिल करार अच्छी आलोक से ज्ञान टाक हासिल करने गोटे शरणापन्न भाव में विनम्र हृदय आम पाखे शरणापन्न हो आलोक अभिप्सा करके आम अध्ययन कर भाव वास्तव अध्ययन करने बहुत गुरुत्वपूर्ण भगवत गीतार अध्ययन में आम प्रथम विषय वस्तुटी को धारावाहिक भाव में आलोचना कले माँ चरण कमल समर्थन करवा माँ को प्रार्थना करवा माँ आमको परवर्ती अध्याय गुड़िक अध्ययन करने योग्य करूँ माँ व्यवस्था करूँ ज्ञान दिंतु और उपस्थित आम प्रभुंर महान शास्त्र को पढ़ी बुझार सामर्थ्य हासिल कर मातृचरण में कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्थन करने सहित उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान सम्मान सहित प्रणाम जनाऊँ समस्त हृदय में माँ दिव्य उपस्थिति को अशेष